بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ شہ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ منڈی عثمان والا میں ایس ایچ او کی کارروائی، 17 ملزمان گرفتار۔ جسم فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والی نائکا اور 3 اشتہاریوں سمیت ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان بھی گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری۔ ایس ایچ او ملک جبار نے ڈی ایس پی ملک یعقوب اوان کی ہدایت پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ شراب نوشی اور غلغبارہ کرنے پر 17 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ جسم فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والی نائکا اور ساتھی خاتون کے ساتھ 3 اشتہاریوں سمیت ناجائز اسلحہ رکھنے والے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا اور گرفتار ہونے والے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ٹھٹھہ شہر گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گیا، جگہ جگہ ابلتے گٹروں شہریوں کا منہ چڑھانے لگے، جبکہ گندگی کے بعد چھوٹے بچوں کو اسکول جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ صفائی ستھرائی کے لیے کوئی عملہ کام کرتے نظر نہیں آتا۔ مزید جانتے ہیں ٹھٹھہ سے ہمارے نمائندے صدام حسین سے۔ جی صدام۔ جی بالکل، میں سر موجود ہوں ٹھٹھہ ڈاکٹر گلی میں۔ آپ میرے عقب میں جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تالاب کا منظر نہیں ہے، یہ ٹھٹھہ کے گٹروں کے ابلے ہوئے گٹروں کا پانی ہے جو 10 روز گزر گئے ہیں۔ ٹھٹھہ ڈاکٹر گلی میں کھڑا ہوا ہے، میونسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ ان کو کئی مرتبہ شہریوں نے کمپلین کی ہے لیکن صفائی ستھرائی کا نظام نہ ہو سکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی 15 روز گزر چکا ہے، میونسپل کمیٹی کو ہم نے کافی مرتبہ شکایتیں کی ہے مگر کوئی یہاں پہ سننے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک نااہل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہے جس کو کافی مرتبہ لوگوں نے شکایت کی ہے، خود بھی سروے کر کے خود جا چکا ہے مگر کوئی بھی یہ صفائی ستھرائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس روڈ سے کم 5 سے 7 اسکول ہیں جن کے بچے یہاں سے گزرتے ہیں، بیچارے گندے پانی سے ڈریس وغیرہ شوز وغیرہ ان کے خراب ہو جاتے ہیں اور شدید مشکلات سے ان کو نمٹنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ یہ ڈرینیج کا سسٹم صفائی ستھرائی کا عمل صاف ستھرا کرایا جا سکے۔ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ اسی گندے پانی سے جو بچے جو ہے وہ اسکول گزر کے ان کو جانا پڑتا ہے۔ ان شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب ٹی وی ٹوڈے عوامی مسائل اجاگر کرنے میں پیش نشاندہی پر بھرپور ایکشن۔ کوٹ ادو میں سیوریج کی دہائیوں پرانے مسئلے پر پیش رفت۔ وزیر مملکت ڈاکٹر شبیر علی قریشی نے سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے 30 کروڑ کی خطیر رقم کا اعلان کر دیا۔ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام جاری ہیں جن میں گلیوں کے کام بھی ہیں، جن میں سڑکوں کے کام بھی ہیں، اور انشاءاللہ شہر کا جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سیوریج کے حوالے سے کہ ہمارے شہر کا جو سیوریج کا پانی ہے اس کا کوئی مستقل حل اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ جتنا بھی پیسہ لگایا گیا وہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے ایک خطیر رقم تقریباً 30 کروڑ کی لاگت سے انشاءاللہ آپ کو سیوریج کا شہر کو شانگلہ موسم میں ایک بار پھر تبدیل۔ گزشتہ 4 روز سے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ مالاکنڈ ڈویژن کے دیگر حصوں کی طرح شانگلہ میں بھی گزشتہ 4 روز سے برفباری اور بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ مقامی شہری گرم ملبوسات کے ساتھ ساتھ چپلی کباب اور گرما گرم کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بجلی کا نظام درہم برہم ہے اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس پر فتنے دور میں عوام کو کھیل جیسی تفریح فراہم کرنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جتوئی کے نواحی علاقے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد حسین خان سے۔ جی محمد حسین خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس پرفتن دور میں کھیل جیسی ایکٹیویٹی فراہم کرنا عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ جھکی والا میں نوجوانوں نے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کے لیے بہت بڑی انوائرمنٹ رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے مینجمنٹ انتظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا بتانا چاہیں گے۔ جی آپ نے یہ بہت بڑا ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کتنے ٹیمیں اس میں کھیل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ سر اس میں جو ہے نا 12 ٹیمیں شامل ہیں اور اس میں کرکٹ کے علاوہ رسہ کشی، دوڑ اور جو ہے نا کافی اور بھی سارے کھیل شامل ہیں۔ اس دور میں ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا کھیل کی طرف راغب کریں، بجائے اس کے کہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں جائیں یا کچھ اور کریں، تو ان کو جو ہے نا ہم نے سپورٹس کے گراؤنڈ جو ہے نا وہ آباد کرنے ہیں اور ان کو جو ہے نا سپورٹس کی طرف لانا ہے تاکہ وہ پازیٹیو ہوں اور پازیٹیو رہیں۔ اور انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے منتظمین کی زبانی سنا، ان کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد صرف اور صرف نوجوانوں کو ایک
کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے، محمد حسین خان، بہت شکریہ۔ دوسری جانب راولپنڈی پنجاب حکومت کے بڑے بڑے دعوے غلط، ریاست مدینہ میں پنجاب پولیس کا رویہ تبدیل نہ ہوا، راولپنڈی کے تھانہ ایئرپورٹ پولیس پتنگ بازی کو روکنے میں ناکام، جبکہ شریف شہریوں کے گھر میں گھس کر بسنت کے نام پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ بشیر ملک سے۔ جی بشیر ملک۔ نام پر تھا ایئرپورٹ کی حدود میں 60 سالہ مسعود ملک پر پنجاب پولیس کا تشدد، پتنگ بازی کے نام پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ پنجاب پولیس کا اس حوالے سے موقف دینے سے انکار۔ اس وقت جو ہے مسعود ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ہم جانتے ہیں ان سے اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ رات 1:30 بجے کا وقت ہے، کے بعد ایک رات میں ہمیں رات کو 1:30 بجے گھر سے اٹھا کے باہر نکالا گیا اور ہمارے بچوں کو پکڑ کے لے جانے لگی۔ پنجاب پولیس تھانہ ایئرپورٹ کی پولیس تھی، انہوں نے بچوں کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ ان سے فریاد کرنی شروع کی کہ یہاں پہ کوئی پتنگ نہیں اڑا رہا تھا، لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی۔ خواتین سمیت ہم پر پنجاب پولیس نے بہت تشدد کیا، اچھا خاصا تشدد کیا، بار بار اس طریقے سے ہمارا کہ ہمیں بار بار سڑک پر گرنا پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ پنجاب پولیس ہمارے ساتھ کیا کرے گی، ہم محفوظ بھی ہیں یا نہیں اس معاملے میں، ہمیں اس چیز کا بھی جواب دیا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے مسعود ملک کا کہنا ہے پنجاب پولیس کے لوگوں کا کیا ہے کہ وہ اس طرح زیادہ۔ بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، جہاں پر جشن بہاراں کا آج دوسرا دن بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بلال ہاشمی کی رپورٹ۔ مظفر گڑھ میں جشن بہاراں کا آج دوسرا دن بھی بڑے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آج مختلف سکول کے بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سکول کے بچوں کے درمیان پینٹنگ، مہندی اور بیوٹیشن کا مقابلہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے آج جشن بہاراں کے دوسرے دن بھی مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج ہم نے جو یہ لوگوں کے لیے جشن بہاراں کا انتظام کیا ہوا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ بچے سکولوں سے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خواتین بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ آج ہمارا بیسیکلی فیملی ڈے ہے اور فیملی جشن بہاراں کے دوسرے دن بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 200 کے قریب اہلکار داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات ہیں۔ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یہاں پہ جناب پرنسپل صاحب، جناب ٹیچر صاحب مہمان تشریف لائیں گے اور یہاں پہ ہم نے سیکورٹی کا انتظام کیا ہے۔ سیکورٹی کے لیے ہم نے 200 ملازمین کانسٹیبل وغیرہ اور پولیس پارٹی نیٹ ڈیوٹی پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر میڈم مہجبین ایجوکیشن سٹال کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، آج جشن بہاراں مظفر گڑھ میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی زیر نگرانی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق بھرپور شرکت کر رہا ہے اور ہمارا آج ہم یہاں پرنسپل صاحب نے جشن بہاراں کا انعقاد کیا ہے۔ بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، یہاں پہ جو کرونا کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ سب لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ آئے ہیں سوشل ویلفیئر۔ جشن بہاراں کے دوسرے دن بھی کالج اور سکول کی طالبات کے علاوہ بہت سی فیملیاں بھی موجود ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ہاشمی، بیورو چیف۔ کچا کھو میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے بنایا گیا سسٹم بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ شہری کڑوا اور آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، وہاں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کچا کھو میں اور میرے پیچھے آپ یہ بڑی سی ٹینکی دیکھ سکتے ہیں۔ 1962 اور 63 کے وسط میں بنائی گئی یہ صاف پانی کی ٹینکی، جسے صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کچا کھو اور گرد و نواح میں جتنے بھی علاقہ مکین ہیں، لوگ رہائش پذیر ہیں، انہیں صاف پانی کی سپلائی دی جائے۔ لیکن 1962 اور 63 سے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا نئے پاکستان میں ہو گیا کہ بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یہ ٹینکی اور اس میں جو سپلائی کا سارا سسٹم تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ ہر گھر سے ماہانہ 200 سے 300 روپے بھی وصول کیے جاتے اور ان تمام پیسوں کو ملا کر بل ادا کیا جاتا، لیکن وہ پیسے بھی لیے گئے اور بل بھی ادا نہ ہوا۔ 2,48,000 روپے بل آ گیا۔ اس متعلق کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ زیر زمین پانی جو ہے وہ بہت آلودہ ہو چکا ہے، اس سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور ماہانہ ہم یہ بل ادا کرتے تھے، محکمے کو دیتے تھے، محکمے نے ابھی تک وہ بل ادا نہیں کیا، واجب الادا ہیں۔ ٹینکی یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ ٹینکی کا پانی بند ہے
जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। इसी तरह पूरा इलाका परेशानी से दो चार है और तब्दीलियों वाले नए पाकिस्तान में यहाँ पर बात ये भी एक नई जन्म लेती है कि ये 2,48,000 रुपये कितने महीने का बिल था, ये बिल क्यों नहीं पे हो सका। शहरियों की तरफ से आला हुकाम को खसूस तौर पर DC बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। गढ़ महाराजा में साबिका जेल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी, जबकि नशे के आदी लोगों ने रिहाइश गाह बना ली। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर। जी बिल्कुल, गढ़ महाराजा में साबका जेल इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से ये इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। नशे के आदी लोगों ने अपनी रिहाइश गाह बना ली, यहाँ बैठ के नशे के आदी लोग नशा करते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो कीमती सरिया और ईंटें भी चुरा कर ले जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन मुजम्मल वकास आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो कीमती सरिया और ईंटें, दरवाजे और इसके अलावा जो कीमती खिड़कियां लगी हैं वो भी चुरा कर ले जाते हैं। और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ कोई तवज्जो दे, मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, इस चीज़ का नोटिस लिया जाए ताकि ये जो गरीब आवाम के टैक्स। जहानिया पुलिस ने चक 150-10-8 में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का मुहिम्मा हल कर लिया। बेटा ही बाप और बेवा खातून का कातिल निकला। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी बिल्कुल, जहानिया के नवाई चक 150-10 में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात रूनमा हुई है, जिसमें एक औरत एक मर्द को बेदर्दी से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया और मौके पर पुलिस गई है। पुलिस ने शवाहद इकट्ठे किए हैं और इस अंधे कत्ल किया SHO जहानिया ने ट्रेस कर लिया है। मेरे साथ SHO जहानिया मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कत्ल कैसे ट्रेस किया है और हक़ाइक़ क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 15/2/21 को ये वारदात हुई अंधे कत्ल की। ये दोहरा कत्ल था, अंधा कत्ल नहीं था, दोहरा कत्ल था। तो ये मुकदमा दर्ज किया हम लोगों ने नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। तो DPO साहब की हदायत पे हमें गाइडलाइन दी गई और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसको ट्रेस किया। तो बेटा ही बाप का कातिल निकला। अपने बेटे का नाम उस्मान है और अपने अब्दुर्रहमान जो उसका मुलाज़म है उसके साथ मिलकर इन्होंने ये कत्ल किया है और गिरफ़्तार हैं हमारे पास। अब ये रिमांड पे हैं, इंशाल्लाह इनको कैफ़े करदार तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि SHO जहानिया फलक शेर काटिया साहब ने बताया है कि बेटा ही बाप का कातिल निकला। उन्होंने मुलाजिम के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया है और पुलिस इस वक्त तफ्तीश। बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। कबीर वाला बस्ती हुसैनाबाद के इलाका मकीनों का सीवरेज सिस्टम नाकारा सफाई के नाकिस इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला के ऑफिस के बाहर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं, वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज। जी खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, जहाँ पे जो है बस्ती हुसैनाबाद के रिहायशी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज कब तक जारी रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारपुर रोड हुसैनाबाद मॉडल टाउन, ये इस इलाके की जो सेवरेज है तकरीबन अरसा 1 साल से बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से बंद हो चुकी है कि पानी जो है बिल्कुल बैक मार रहा है। लोगों के मकान वो गिर रहे हैं, दुकानें वो भी गिर रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और ये सेवरेज का पानी रोड पे निकल कर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुसाफिर को बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। आए रोज़ हर रोज़ तकरीबन 2-4 लोग गिरते हैं, जिनके किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जैसे कि आपने ऐसे उनका यही कहना है कि हम हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने कितनी दफ़ा जो है AC साहब को और DC साहब को दरख्वास्त दी हैं, लेकिन हमारे सादकाबाद में ताइक्वांडो का खेल मकबूल होने लगा। सहूलियात की अदम फराहमी के बावजूद लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस खेल में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर साल इनके दरमियान फाइट मुकाबले करवाए जाते हैं और असनाद भी तकसीम की जाती हैं। सादिकाबाद से देखते हैं धनी बख्श मेहर की रिपोर्ट। ताइक्वांडो टेक्निक से हाथों से मजबूत ईंटों को पल भर में रेजा रेजा करने वाले, हाथों से स्टिक को घुमाने वाले ये हैं सादिकाबाद के ताइक्वांडो के खिलाड़ी, जो
कम वसाइल के बावजूद इस खेल में कमाल महारत हासिल कर चुके हैं। बड़ों के साथ साथ नन्हे खिलाड़ी भी टफ टाइल से बने ग्राउंड पर गेम करते हैं। लड़कों के साथ लड़कियां भी इस सख्त जान खेल में खूब जोहर दिखाती नजर आती हैं। खेलों के फ़रोग के लिए इंतजामिया का किरदार बहुत अहम होता है। अगर खिलाड़ियों को सहूलियात फराम की जाएँ तो ये खिलाड़ी आलमी सतह पर शानदार परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूरत है और इसमें एक जो माशरा है उसका एक किरदार बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पर कुछ बच्चों के इश्यूज़ के हवाले से भी बात हुई, तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी इश्यूज़ हैं मैट्स की प्रोविजन के हवाले से उसके लिए इंतज़ामिया जो है अपना किरदार भरपूर अंदाज में। ताइक्वांडो की टैलेंटेड तहरीम अनवर और अरीबा अमीन ने न सिर्फ इस खेल को ज्वाइन करके लड़कियों के लिए रोशन मिसाल कायम की, बल्कि पंजाब गेम्स और दीगर मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल करके अपने शहर का नाम भी रोशन किया। बाहिम्मत अरीबा अमीन और तहरीम अनवर की अगली मंजिल आलमी सतह के मुकाबलों के लिए खुद को तैयार करके मुल्क का नाम रोशन करना है। मैं लाहौर से जीती हूँ, बहावलपुर से जीती हूँ और रहीमिया खान से भी मेडल्स जीत कर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमें फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाए। यहाँ पर बहुत टफ टाइल्स हैं, जब हम क्लास करते हैं तो हमें बहुत सी चोट वगैरह लग जाती है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं। उसको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी फियर और उन्हें आगे जाना चाहिए ऐसी। और इसमें गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो उन्हें अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहिए। हाथों में कामयाबी के कार्ड उठाए, गले में गोल्ड मेडल सजाए, ताइक्वांडो के ये फाइटर्स पुरुमीद हैं कि हुकूमत इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए सहूलियात फराम करेगी ताकि ये फाइटर्स आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
मार्केट में बजरी पत्थर बनाने वाले मजदूरों से जबरी मुशक्कत का सिलसिला जारी। मजदूरों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं चन्योर से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। चन्योर सरगोदा रोड पर वाक़ एशिया की सबसे बड़ी क्रैश मार्केट में बजरी पत्थर बनाने वाले मजदूरों के साथ लीज होल्डर ठेकेदारों की जानिब से जबरी मुशक्कत, गैर इंसानी सलूक और इन मजदूरों के इत्तेसाल पर पहाड़ी मजदूर इत्तेहाद यूनियन की तरफ से एहतजाज किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मजदूरों को कम उजरत दी जाती है। हमारी जुम्मे की जो छुट्टी है वो मंजूर कराई जाए, ठीक है। जो हमारा 50 रुपये ट्राली का काट रहे हैं, 100 काट रहे हैं, वो मंजूर कराया जाए। तो ओवरलोडिंग है, जो हमारे पास 2 सैकड़े, हमारा 2 सैकड़े पूरा लिया जाए। यहाँ पर जो लीज होल्डर हैं, इन लोगों के जो करिंदे हैं, वो यहाँ पर बत्ताखोरी भी ले रहे हैं। 30,000, 35,000, 40,000 तक वो लोगों से ले रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मजदूरों को हफ्तावार छुट्टी भी नहीं दी जाती। मकामी ठेकेदार यौमिया उजरत से कटौती करते हैं। मजदूरों की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। कैमरामैन अहमद तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी। मुरीदके के नवाही गांव में रात गए कबूतरों का जाल ठीक करते 2 अफराद करंट लगने से जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तीनों अफराद रात गए अपने घर की छत पर कबूतरों का जाल ठीक कर रहे थे कि अचानक पास से गुजरती बिजली की तारों से जा टकराए, जिसके नतीजे में शहबाज और उस्मान मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मी होने वाले शख्स शहजाद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन के इंजीनियर्स का एक और कारनामा। मिडिल पास इंजीनियर फयाज ने 2 साल बाद ही एक और जहाज बना लिया। इंजीनियर फयाज का कहना है कि नया जहाज पहले से भी ज्यादा मजबूत और नई खसूसियात का हामिल है, मगर उड़ाने का वक्त आया तो पुलिस आड़े आ गई। पुलिस ने फयाज को जहाज उड़ाने से रोक दिया और संगीन किस्म के मुकदमा दर्ज करने की धमकियां भी दी गईं, जिस पर फयाज ने एहतजाज किया और जहाज को आग लगाने का कह दिया। सर्कल कबीर वाला की हदूद में कत्ल गारत का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर दौरान लड़ाई 3 अफराद कत्ल और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस सर्कल कबीर वाला में बढ़ती हुई कत्ल गारत की वजह से पूरी तहसील कबीर वाला में खौफ व हिरास फैल गया। पहला वाक़या कबीर वाला के इलाके दीनपुर सुई गैस प्लांट में पेश आया, जहां दौरान लड़ाई चाकू के वार से 1 शख्स कत्ल और 2 जख्मी, जबकि दूसरा कबीर वाला के इलाके बस्ती जाकरा में पेश आया, जहां जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग पर 2 शख्स जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर गुज़श्ता रोज़ कोर्ट के इसरानी में 3700 केनाल सरकारी रकबा अराजी काबज़ीन से बागुज़ार करवाई गई। आज ज़रई ग्रेजुएट्स के मुलाजमीन मौका पर पहुंचे तो कोर्ट के इसरानी में नामालूम अफराद ने अमले पर हमला कर दिया। मौका पर मौजूद ट्रैक्टर ट्राली कार के शीशे तोड़ दिए, कैंपों को जला दिया गया, जबकि नामालूम अफराद के खिलाफ थाना रेथरा में मुकदमा दर्ज। जहानिया के नवाही चक 111-10R में जामे मस्जिद उस्मान गनी के गले बॉक्स में चोर चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर की मस्जिद के गले बॉक्स से रुपए निकालने की फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। जुमा की नमाज के बाद एक चोर को गले से रुपए चोरी करते हुए नमाजियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर की वारदात की फुटेज भी TV टुडे ने हासिल कर ली। नमाजियों और अहले इलाका ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद जहानिया पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान योगा काउंसिल की जानिब से योगा सेशन के बाद योगियों के एजाज में देसी खानों पर मुश्तमिल योगा नाश्ते का एहतमाम। योगियों की देसी खानों से तवाज़ु और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने का अज़्म दोहराया गया। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अजीम नूर कादरी की रिपोर्ट। कहते हैं कि योगा रूह और जिस्म के मिलाप का नाम है। योगा जहां वर्जिश के जरिए जिस्म और रूह को तरोताज़ा करता है, वहां योगा वर्जिश के बाद देसी नाश्ता भी योगियों की रवायत बनता जा रहा है। पाकिस्तान योगा काउंसिल की तरफ से योगा सेशन के बाद दिए गए पुरतकल्लुफ नाश्ते में दही, लस्सी, देसी घी के पराठे, शक्कर, अचार, देसी अंडे, खालिस शहद, मटन कोरमा, कीमा और देसी घी में बने लजीज हलवे पर योगियों ने खूब हाथ साफ किए। योगियों के चेहरों पर मुस्कुराहट और बाहमी खलूस की झलक भी नुमाया थी। और इस मौके पर योगियों का कहना था कि योगा का मकसद सिर्फ वर्जिश ही नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे में खलूस, प्यार और मोहब्बतें बांटते हैं। हमारा आज़म योगा के जरिए पाकिस्तान को सेहतमंद बनाना है। ये फर्स्ट टाइम एक पुरतकल्लफ नाश्ता है जो 2 शहरों की नुमाइंदगी कर रहा है। 2 शहर इकट्ठे हुए। ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये दिलों को मिलाने का, मोहब्बतें बढ़ाने का और मोहब्बतों की सांझ डालने का एक बहाना था। आज विहाड़ी और बुरे वाला इकट्ठे हुए, खूब हल्ला गुल्ला, मोहब्बतें, प्यार और इकट्ठे नाश्ता किया। तो योगा जोड़ने का नाम है, तो ये जोड़ने की एक कड़ी है, एक हिस्सा है। योगा से जहां सेहतमंद सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, वहां मोहब्बत, प्यार और खलूस के साथ देसी और सेहत अफजा खानों की तरगीब भी दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ
मोहम्मद अजीम नूर। टंडो रहीम खान समेत गिरदोनवाह में दरख्तों की कटाई जारी है। इंतजामिया की मिली भगत से रोजाना हजारों की तादाद में दरख्त काटे जाने लगे। टंडो रहीम खान, वाही पांती, ढरगा भाला समेत गाजू के कई इलाकों में दरख्तों की कटाई जारी। एक तरफ हुकूमत की जानिब से दरख्तों की कटाई पर दफा 144 नाफिज है और हुकूमत की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे हो रहे हैं और दरख्त लगाने के बहाने करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हद की पुलिस और जिला इंतजामिया की मेली भगत से रिश्वत के एवज ये कारोबार किया जा रहा है। मीडिया पर मुसलसल खबरें चलने के बावजूद भी कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई एक्शन नहीं लेते। रोजाना की बुनियाद पर काचू के मुख्तलिफ इलाकों टंडो रहीम, ड्रग बाला, वाही पांधी समेत कई शहरों से हजारों की तादाद में दरख्त काट कर दिन दिहाड़े शहरों में लाए जाते हैं। नौशहरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, कलील मुद्दत में मोटरवे पर डकैत गिरोह के 5 अरकान गिरफ्तार। 94 लाख रुपए का माली मसरूका वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। डकैत गिरोह ने 4 फरवरी रशकई इंटरचेंज पर खैबर टोबैको कंपनी के मुलाजिम से 1 करोड़ 10 लाख छीन लिए थे। मजीद देखते हैं माजिद खट्टर की इस रिपोर्ट में। नौशहरा पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई, डकैत गिरोह के 5 एहलकार गिरफ्तार कर लिए। 4 फरवरी को रशका इंटरचेंज के करीब एक्साइज वर्दी में मलबूस 9 एहलकार ने खैबर टोबैको कंपनी के मुलाजिम से 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे, जिस पर DIG शेर अकबर खान ने सख्ती से नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर नजमुल हसनैन की सरबराही में नूर जमाल SP इन्वेस्टिगेशन, फकास रफीक ASP कैंट और सैफुल्ला SHO पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देकर मुलजिमान तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के हमरा मुख्तसर वक्त में मुलजिमान का सरगना शरीफुल्ला को ट्रेस करके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने जो इस डिकॉइटी का बेसिकली रिंग लीडर था, जिसका नाम शरीफुल्ला है और इस्लामाबाद में रहाइश पजीर था, नौशहरा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस दोनों जो है बाराकऊ के अंदर जाके जॉइंट रेड किया गया उनके घर के ऊपर और वहाँ पे पुलिस को मुजाहिमत का सामना भी करना पड़ा और फायरिंग का तबादला भी हुआ। लेकिन 1 घंटे की फायरिंग के बाद जो है पुलिस कामयाब हुई और इस डिकॉइटी का जो रिंग लीडर था शरीफुल्ला, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने इकरार जुर्म करते हुए सब उगल दिए। मुलजिमान की निशानदही पर 94 लाख रुपए का माल मसरूका इस्तेमाल। जहां कोहाड़ शहर खुद गैस जैसी मादनियात से मालामाल है, तो दूसरी जानिब शहरी आज भी गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान है और कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरान की खामोशी सवाल या निशान बन गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं फरहान बंगेश की इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाका ज्वाकी बांडा, जिसके आसपास के इलाकों में गैस मौजूद है, मगर ज्वाकी बांडा में गैस की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि गैस इधर मंजूर हो के फिर भी हमको नहीं मिली और जिधर MPA साहब और MNA साहब की जिधर ताल्लुकदारी है तो वो अपने इलाके के लिए अपने घर को गैस दी हुई है और हमारे इलाके गैस से महरूम रह चुके हैं। ज्वाकी बांडा के मकीनों ने गैस की अदम दस्तयाबी पर